Good morning, children. Good morning, sir. Very good morning. So, today I'm here to start a very wonderful poem. And today's poem is A Tiger in the Zoo. First of all, would be coming to know about the greatest poet here. Here, the greatest poet, Leslie Norris. He was born on 21st May 1921 and died on 6 April 2006. He was a well-known Alice poet, right? He was not only a poet but also he was a he was a teacher. His poem often talks about the freedom of the animals, freedom of the people, right? Freedom of the people and equality of the animals and all the living things. All the living things. So did you understand about the poet here? Okay. A Tiger in the Zoo. It's a very interesting actually chapter that I'm going to teach you today. I'm just telling you, just see in your book. The poet tells here the poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural. The poet compares a tiger who lives freely in the jungle, means forest. The poet Leslie Norris has compares two tigers. यहाँ पे पोएट जो है लेस्ली नॉरिस, जो कि एक एलिस पोएट हैं, ठीक है, जो कि हमेशा वो फ्रीडम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो चाहे वो जानवर की बात हो और चाहे वो मनुष्य की बात हो. इस धरती पे हमने जन्म लिया है ना, तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. बेटा हमने आप लोगों को जो है एक चैप्टर पढ़ाया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पढ़ाया था कि नहीं? नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने पढ़ाया था. उसमें बताया गया है कि अपार्टहेड की जो सिस्टम थी साउथ अफ्रीका में, वो कितनी मतलब बैड सिस्टम थी, जिसको नेल्सन मंडेला ने उस चीज को खत्म किया. तो मैं एक चीज मैं कह रहा हूं कि सबको इक्वल राइट है इस धरती पे जीने का. पोएट यहां पे यही कहते हैं, इंडिपेंडेंस हमें कोई छीन नहीं सकता है. दुनिया में कितने भी बलवान क्यों ना हो, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को हनन करना ये सबसे बड़ा अपराध होता है. ये कौन कहते हैं? पोएट कहते हैं. आ रहा है समझ में? तो यहां पे जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, वो दो बाघों के बारे में बताया गया है. एक बाघ जो जंगल में रहता है, जो कि फ्रीली है, किसी तरह का कोई जो है उसमें जो है बाउंडेशन नहीं है, वो फ्री जहां जा सकता है, फ्री जा सकता है, कहीं भी वो शिकार कर सकता है. और एक टाइगर जो बेचारा है, वो एक पिंजरा में बंद है. वो कहां पे है? जू में, चिड़ियाघर में बंद है. चिड़ियाघर गए हो कि नहीं आप लोग? वो बेचारा, उसे आजादी चाहिए. उसे क्या चाहिए? आजादी चाहिए, लेकिन वो उसे पिंजरा में बंद कर दिया गया है. यहाँ पे पोएट जो लेस्ली नॉरिस हैं, उस चीज को जो है बताते हैं. एक बाघ जो है उस जंगल में है, जो कभी भी किसी इम्पाला पे, कभी भी डियर्स पे वो शिकार कर सकता है, अटैक कर सकता है उस पे. लेकिन एक जो जू है, एक टाइगर जो है वो जू में बंद है, बिल्कुल एक केज में बंद है. वो शिकार नहीं कर सकता है. जब उसे उसके मालिक, उसके चिड़ियाघर के ऑनर को लगे कि ये भूखा हुआ है, तब उसे जाके खाना पहुंचाता है. वो भी ताजा खाना नहीं होता है. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे एक जो टाइगर है, उसकी स्वतंत्रता को हनन किया गया है. यहाँ पे पोएट यहाँ पे यही कहते हैं. गॉट इट? ओके. Habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. The poet highlights the tiger. He has actually compares the two tigers. The first tiger who is totally free in the jungle, and the second tiger who is not totally free in the zoo. He has been what? Locked in the cemented wall cage. Got it? Did you ever go to zoo? Did you ever go to zoo? क्या आपने कभी बाघ को देखा है चिड़ियाघर में? हाँ. So sometimes the poet
actually highlights about the tiger who is totally free in the jungle. Sometimes the poet here highlights the tiger who is not totally free in the cage, who is actually totally locked in the cage. Got it? Okay. Read the poem silently and once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. The poet wanted to say us that here more than 5 or 6 stanza actually as given in this chapter. The poet talks about the tiger who is totally free in the jungle, okay, stanza wise, and the tiger who is not totally free, who had been locked in a concrete cell. Concrete cell means you can say cage. Cage means क्या होता है? पिंजरा. तो हम लोग स्टांजा वाइज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा स्टांजा जो है वो बिल्कुल उस जंगल के शेर के बारे में बताता है, कौन सा स्टांजा जो है हमें चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताता है, शेर के बारे में बताता है. Got it? Okay. Now I'm going to start the poem. Look at the first stanza of this poem. He stalks in his vivid stripes. Stalks means what? Walks slowly. Walks slowly and secretly. धीरे धीरे चलना, चुपचाप चलना. Vivid means you can say bright and clear. Bright and clear. And stripe means line on the tiger's body. कभी कभी देखे हो बाघ को कि बाघ को जो होता है पीछे साइड में वो एक धार होता है, धारियां बना होता है, देखो कि नहीं, एक स्ट्राइप्स बना होता है, ये येलो कलर का होता है, कभी ब्लैक कलर का होता है, देखे हो कि नहीं? हैव यू एवर सीन द बंगाल टाइगर? ये बंगाल टाइगर में ज्यादातर दिखता है ये. गॉट इट? तो यहां पोएट कहते हैं ही स्टॉक्स इन अ विविड स्ट्राइप्स means the tiger who is totally locked in the cage, he walks slowly and secretly. Walks slowly and secretly. Vivid means bright, clear. उसे लगता है कि मैं आजाद हूं उस पिंजरे में, उसे कभी कभी फील होता है. The few steps on his cage. The few step on his cage. जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो पाता है कि मैं कहां पे लॉक हूं, पिंजरे में लॉक हूं. वो आगे बढ़ नहीं पाता है. आया समझ में? ओके. ऑन अ पैड्स ऑफ अ वेलवेट क्वाइट. पैड मींस यू कैन से सॉफ्टन पैड्स. वेलवेट मींस होता है मखमल. क्या होता है? मखमल का देखे हो ना, उसकी जो पैर है वो बिल्कुल वो वेलवेट की तरह बन गई है, क्योंकि वो चलना भूलना जो है जंगल में बंद कर दिया है. वो बिल्कुल कहां पे वो चलता है, बस यहां से वहां तक चलता है वो. ठीक है, वहीं तक चलता है. उसकी जो पैर भी जो है बिल्कुल नाजुक बन चुकी है. वो अब जंगल में हिरन का शिकार वो नहीं कर पाता है, और भी जो बफलोज हैं, और भी जो उसके जो खाना है जिसको हंट कर सकता है, वो किल कर सकता है, अब उसकी बस की बात नहीं है. वो बिल्कुल कहां पे लॉक है? वो एक पिंजरे में लॉक है. वेलवेट क्वाइट इन इज अ क्वाइट रेज. In his quiet rage. Rage means you can say anger. Okay. First of all, the poet highlights about the tiger in the zoo. In the zoo, he says that the tiger walks slowly and secretly. Walks slowly and secretly with having bright and clear way. He's having a different colors on his backside, stripes. समझ में आ रहा कि नहीं? धारियां. And when he started moving towards the cage, what could he see? He could see that I am totally locked in a cage. And he's actually pause means समझ रहे हो? हाँ? No. Pause means रुकना नहीं होता है. उसका जो क्या सकते हो, पंजा जिसको कहते हो, क्या कहते हो उसको? बिल्कुल इट बिकेम लाइक द वेलवेट. ठीक है, वेलवेट मखमल की तरह हो गया है, क्योंकि ही एक्चुअली व्हाट, ही स्टॉप हंटिंग एनी अदर एनिमल्स. ही स्टॉप हंटिंग एनी अदर एनिमल एंड he became very angry. Why I have been locked in this cage? I want to free from here. I want to free from here.
लुक, इस धरती का सबसे अगर पावरफुल जानवर जो होता है, अगर हम कह सकते हैं, तो वो होता है कौन? बुद्धिमान और पावरफुल की मैं बात कर रहा हूं। वो शेर होता है, टाइगर होता है कि नहीं? जानवर, चाहे वो हाथी हो, चाहे जिराफ हो, चाहे वो गैंडा हो, जितने भी जानवर हैं सब उसकी दहाड़ से क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं, जंगल में डर जाते हैं कि नहीं? लेकिन जब वही व्यक्ति, जब उसी जानवर को हम लॉक कर देते हैं तो कोई नहीं डरता है। उसके पास हम लोग जाके फोटो को क्लिक करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन जब वो खुला आसमान में वो घूम रहा होता है तो क्या उसके साथ हम फोटो क्लिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, आपके पास बहुत सारी पावर है, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके पास बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन जब आपको किसी एक रूम में कैद कर दिया जाएगा, जैसे जेल हमें कहते हैं, कहाँ कहते हैं? जेल। तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा पावर है, आपके पास बहुत सारा पैरवी है, लेकिन जब आप जेल में चले जाओगे तो बिल्कुल वो चिड़ियाघर की जो शेर है ना, उसके जैसा आप बन जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में नहीं? इसीलिए किसी जानवर का, किसी व्यक्तियों का हमें राइट नहीं है कि उसे हम किसी जगह में कैद करके रख सके। उसके लिए कानून है ना? Did you understand the first stanza of this poem? Okay, come to the second stanza. He should be lurking. Lurking means hiding secretly. Lurking का मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए आप लोग। Lurking का मतलब क्या होता है? Hiding secretly. इसका मतलब होता है छिप कर रहना। कहां पे? जो फर्स्ट स्टांजा था वो चिड़ियाघर के जू के बारे में है। जो सेकेंड स्टांजा मैं पढ़ा रहा हूं वो है किसके बारे में? जो शेर है वो कहां पे है? जंगल में है। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass. Long grass means tall grass. Near the water hole. Water hole means क्या होता है? Place where animals drink water. एक ऐसा जगह जहां पे जानवर जो है पानी पीने के लिए जाते हैं। Where plump deer pass. Plump deer का मतलब यहां पोएट क्या कहते हैं? ताजा, मोटा, मोटा ताजा, ताकि एक हिरन को मार सके तो पूरी उसकी क्या हो सके? पेट को भर सके। किसका? शेर का। प्लम्प डियर का मतलब क्या होता है? फैट डियर। और बच्चे को मारेगा, कभी कभी जब शेर भूखा भी होता है तो बच्चों को भी मार देता है, लेकिन उसका मन है किसका शिकार करना? हिरन का। वो भी मोटा ताजा, वो भी मोटा ताजा, ताकि उसका पेट जो है पूरी तरह से क्या हो सके? भर सके। आ रहा है समझ में? Okay, he should be lurking in a shadow. The poet tells in the second stanza of this poem that he should be in the jungle. The tiger should be in the jungle. He will be totally free over there. He must be hidden nearby the tall grass where plump deer pass. Where the plump deer pass? Near water hole. Near water hole. Water hole means a kind of place where the wild creatures they often go to drink water. They often go to drink water. वो पोएट यहां पे कहते हैं कि वो शेर जो है उसे जंगल में होना चाहिए था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो लॉन्ग जो ग्रास है, टॉल जो ग्रास है, जहां पे वाटर होल का मतलब यहां पे होता है एक छोटा सा पानी का, वो कह सकते हो एक तालाब कह सकते हो, जहां पे पानी पीने के लिए जानवर जो है जंगल के जाते हैं। कहां पे जाते हैं? उस तालाब में जाते हैं, टापू में जाते हैं पीने के लिए। और वो क्या करेगा? वो शेर छुप के रहेगा। कहां पे रहेगा? वो छुप के रहेगा, और अचानक प्लम्प डियर यानी मोटे ताजे हिरन पे क्या कर सकता है? वो अटैक कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम? ओके, कम टू द थर्ड स्टांजा. He should be snarling around the houses, means growling angrily, gurana, at the jungle's edge. Jungle's edge means border of the forest. यानी जंगल के मतलब जो किनारा होता है, क्या होता है? किनारा. Bearing his white fangs.
फैंग्स मीन्स होता है लॉन्ग शार्प टीथ, लॉन्ग शार्प teeth, his claws, sharp nails. The poet in the third stanza tells us that he should be snarling, means growling angrily nearby the houses, bearing his white fangs. White fangs means you can say long sharp teeth. जो शेर के जो होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। कौन होते हैं? ठीक है, मॉलर्स, प्री मॉलर्स भी होते हैं शायद, लेकिन ज्यादातर उसके जो दांत होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। पोएट यहाँ कहते हैं कि उसे जाना चाहिए घर के आसपास, घरों के आसपास, और उसे क्या करना चाहिए? अपने पंजों को दिखाना चाहिए, अपने मजबूत पंजों को, और अपने जो शार्प टीथ है यानी नुकीले दांत। शार्प टीथ मतलब क्या होता है? नुकीले दांत से जो है लोगों को दहशत फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दहशत फैलाना चाहिए। ये शेर क्या करता है? दहशत को फैलाता है। कहां पे? जंगलों में। आ रहा समझ में? ताकि सारे जानवर हमसे क्या हो सके? डर से भाग जाए, या तो मैं उस पर क्या कर सकूं? हमला कर सकूं, अटैक कर सकूं। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Yes, terrorizing the village means आतंक फैला सके गांव में, ताकि गांव के लोग मेरे पास ना आए। आ रहा समझ में? The poet in the third stanza of this poem highlights about the powerful sharp teeth of the tiger. And not only the sharp teeth, but also the power of the tiger, that he will go nearby the village and he will start roaring over there. He will start roaring, and after getting the voice nearby the village, the villagers will stay away from the tiger. Understood? पोएट यहां थर्ड स्टांजा में कहते हैं कि वो टाइगर के पास व्हाइट कलर के शार्प टीथ है, बड़े बड़े। उसके जो यहां पे एक चीज और कहते हैं, क्लॉज जो है, शार्प नेल्स मतलब समझते हैं, उसके पंजे में बड़े बड़े नेल भी होते हैं पंजा में। आ रहा समझ में कि नहीं? वो ताकि वो दिखा सके, वो अपने आतंक को दिखा सके, ताकि वहां के जो विलेज हैं, गांव के लोग हैं, वो हमारे पास आने की हिम्मत ना कर सके। या पोएट अपनी क्या बताता है? यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बाघ की जो है पावरफुल चीजों को बताया जा रहा है इन द थर्ड स्टांजा। डिड यू अंडरस्टैंड द थर्ड स्टांजा? ओके। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मीन्स सीमेंटेड केज। मैं बताया था पहले भी, लेकिन वो बेचारा लॉक कहां है? वो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए इधर, वो कहां पे लॉक है? एक बिल्कुल जो है सीमेंट से बना हुआ केज है, उसी में क्या है? वो लॉक है। उसकी जो दहशत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसे अब कोई डरने वाला नहीं है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है मींस पावर, ओनली इनसाइड द बार, नॉट आउटसाइड द बार। बट when that tiger goes nearby the forest, then he can show his full strength, right? Okay, stalking the length of the cage, ignoring visitors means घूमने वाले, दर्शक जो शेर के पास जाते हैं देखने के लिए। आ रहा समझ में कि नहीं? उसे देखने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। वो क्या करते हैं? he started ignoring means paying no attention towards the visitor. In the fourth stanza of this poem, the poet tells us that actually what happens? He has a strength, he has the power, he has the capability, he has the ability. The tiger has everything, but he has been locked in a concrete cell. So all his power inside his bars. Bars means you can say iron, लोहे की छड़ के अंदर में सारी शक्तियां उसका कैद हो गई है। Got it? Okay. And stalking length of the cage, ignoring visitor,
and now he started paying no attention towards the visitor. और वो बेचारा थक गया है। क्या हो गया है? वो लोगों का सेल्फी लेते लेते टाइगर के साथ तो थक गया है। जब भी कोई विजिटर्स जाते हैं तो उसको इग्नोर कर देता है ना? बोलता है यही मेरा काम बचा हुआ है, सिर्फ आप फोटो खींचेंगे। कौन कहता है? टाइगर मीन्स कहता है, पोएट यहां कहते हैं कि वो बिल्कुल अब थक गया है। He started avoiding the people. He started avoiding the people. उसकी आजादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। He had lost his freedom inside the cage. कहां पे वो, उसकी फ्रीडम कहां खत्म हो चुकी है? कहां पे? कंक्रीट सेल में। आ रहा समझ में कि नहीं? कभी कभी बच्चों दिखना कि कोई नेता पे आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, कोई लोगों पे, बड़े बड़े जो हमारे देश के जो लीडर्स हैं, उसके पास जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे भी जो है कंक्रीट सेल में ही लॉक कर दिया जाता है, जैसे टाइगर को जू में लॉक किया जाता है। और फिर आपके घर वाले जाएंगे मिलने के लिए फल फ्रूट्स लेके, सब कुछ खाने में मजा आएगा आपको, लेकिन आपको वहां से बिल्कुल आजाद नहीं हो, इंडिपेंडेंस नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से वो आजाद जो है शेर है, वो आजाद वहां पे नहीं है बच्चों। वो पोएट कहते हैं कि उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्तियां है, वो बिल्कुल इस ये पिंजड़े की जो रॉड बनी हुई है वो उसी के अंदर में है। वो बाहर अपनी पावर को दिखा नहीं सकता है। गॉट इट? और वो यहां तक क्या करता है? He started paying no attention towards the visitor. विजिटर्स का मतलब क्या होता है? जो वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं शेर को, अब आप उसको इग्नोर कर देता है टाइगर। Is there any confusion? Come to the last stanza. इग्नोर का मतलब क्या होता है भाई? अनदेखा करना। क्या करना? He hears the law's voice at night. The patrolling cars guarding by moving around means होता है, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहां पे दिया हुआ है गार्डिंग बाय मूविंग राउंड, गश्ती करना। क्या करना? जब गश्ती की जो गाड़ी जाती है, एंड स्टेज विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, he hears the last voice at night. He has some hope. Listen carefully, my dear student. Come to the last stanza. He has some hope that one day I'll be free from here. Right? उसके पास भी एक आशा है, विश्वास है कि मैं एक दिन यहां से क्या हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। लेकिन आजाद कभी नहीं हो पाएगा। वो आखिरी सांस तक वो आजाद उस पिंजरे से नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ में? वो कहता है द पेट्रोलिंग कार्स गार्डिंग बाय मूविंग राउंड, गश्ती करना, जो गाड़ियां जो होती है पेट्रोलिंग कार, उसकी आवाज को सुनता है एक बार और फिर से क्या कर देता है? स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज, और कंटिन्यूसली क्या करता है? वो घूरता है इधर उधर कि कोई मुझे निकालने के लिए आ रहा है क्या? कोई आ रहा है मुझे निकालने के लिए क्या? मुझे यहां से। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ब्रिलियंट स्टार्स, फिर वो जो है थक के सो जाता है। He got tired and started sleeping. And before sleeping, he started seeing towards the sky. वो आसमान की तरफ देखता है कि काश मैं भी पूरी खुली आजादी में, खुली आसमान में, खुले जंगल में मैं भी उस स्टार को देखता, मैं भी आजाद रहता। वो किसको देखना चाहता है? खुले आसमान के तारे को देखना चाहता है, लेकिन वो कंक्रीट सेल में वो बिल्कुल बंद है। Do you understand the poem? How was the poem, my dear student? बस एक चीज मैं कहूंगा कि आजादी छीनना हमारा सबसे बड़ा अपराध है, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का। ठीक है, उसको भी इस धरती में जीने का अधिकार है, जितना जीने का अधिकार हमें मनुष्यों, सारे लोगों को है, जितने भी हम लोग मनुष्यों को है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी क्रिएचर्स हैं, जिन्होंने भगवान के द्वारा सृजन किया गया, बनाया गया, उसे भी उतना ही आजाद है, उसे भी उतनी आजादी चाहिए। इसलिए यहाँ पोएट यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया पोएट वो एक टीचर भी थे, वो अपनी भावना को लिखे हैं कि एक जो शेर है वो खुले आसमान में वो कभी कभी जाना चाहता है कि मैं भी
दो दो शेरों के बारे में बात करते हैं, दो टाइगरों के बारे में बात करते हैं, टाइगर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पोएट। एक जो है पिंजरा में लॉक है, एक जो खुली आसमान में है। वो प्लम डियर का शिकार करना चाहते हैं, स्टैंजा नंबर 3 में मैंने बताया था, सॉरी 2 में बताया था। लेकिन उसकी जो आजादी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस कविता से हम एक चीज पढ़ सकते हैं, इस पोम से एक चीज हम सीख सकते हैं बच्चों, कि कभी भी कितना भी बलवान क्यों ना रहो, अपनी जो शक्तियां है वो किसी गलत जगह नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो गरीब इंसान क्यों ना हो, सबको इस क्वालिटी के साथ, समानता के साथ इस धरती पे जीने का अधिकार है। दैट्स ऑल, थैंक यू।